Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the sequence of statistical mechanics, today we are going to discuss another topic of classical statistical mechanics, which is classical ideal gas. So, classical ideal gas, the Hamiltonian of a system. We have already discussed about Hamiltonian. Hamiltonian shows the energy. So, अगर किसी सिस्टम का Hamiltonian लें तो वो क्या होगा? H इक्वल टू 1/2m सिग्मा I इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर। यहां पर हमने n पार्टिकल सिस्टम लिया है और एनर्जी हमारी p स्क्वायर बाई 2m होती है, इसलिए हेमिल्टोनियन हो जाएगा H इक्वल टू 1/2m सिग्मा I इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर। हियर m इज मास एंड pi इज मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। सो ith पार्टिकल का मोमेंटम हमारा pi है और सिस्टम का टोटल मास हमने m लिया है। सो द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम H इक्वल टू 1/2m सिग्मा I इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर एंड सिग्मा E इक्वल टू 1/h raised to 3n इंटीग्रेशन h is less than E d3p1 d3p2 up to d3pn d3q1 d3q2 up to d3qn. So this is our sigma E. Since integration of dp into dq equal to h, here h is a constant, so here h is constant of the dimension of momentum into distance. So h हमारा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन मोमेंटम इनटू डिस्टेंस का डायमेंशन होगा, p मोमेंटम, q डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट और पोजीशन। सो dp into dq is h. It means the dimension of h is equal to the dimension of momentum into distance. So momentum का डायमेंशन एंड डिस्टेंस का डायमेंशन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो डायमेंशन होगा वो हमारा h का डायमेंशन होगा। So we used it here to make sigma E dimensionless, क्योंकि यहां से आपको d3p1 d3p2 up to d3pn d3q1 d3q2 up to d3qn मिल रहा है। नाउ यहां से आपको क्या मिलेगा? h3n, सो h raised to power 3n, सो हमने वापस h raised to power 3n से डिवाइड कर दिया है जिससे डायमेंशनली ये कैंसिल हो जाए। सो सिग्मा E की वैल्यू हमारी ये होगी। सिंस इंटीग्रेशन dq1 dq2 dq3n is equal to integration dx1 dy1 dz1 integration dx2 dy2 dz2 up to integration dxn dyn dzn is equal to v raised to n। क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या होता है? वॉल्यूम इज एक्चुअली इंटीग्रेशन dx dy एंड dz, इसको हम v बोलते हैं और यहां पर ये है। नाउ इफ वी चेंज इट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड देन dq1 is actually dx1, dq2 is dy1 and dq3 is dz1। in the same way dq3n dq3n minus 1 dq3n minus 2, ये हमारा हो जाएगा dxn, ये dyn और ये dzn। इसका मतलब इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा v, ये भी v और ये भी v। इट मीन्स हियर वी हैव v into v up to n times, so this will be v raised to n। So integration dq1 dq2 up to dq3n can be replaced by v raised to n। Now integration h is less than e d3p1
D3P2 up to D3Pn, D3Q1, D3Q2 up to D3Qn, और ये हमारा V raised to n हो गया. So this will be equal to V raised to n integration h is less than e D3P1, D3P2 up to D3Pn. So इस क्वांटिटी को हम ये लिख सकते हैं, so this will be equal to V raised to n omega 3n r. इसको हमने ओमेगा 3n r लिख दिया है. अब ओमेगा क्या है, so ये वैल्यू अभी हमने निकाली है. Here p इक्वल टू रूट ऑफ 2mh, क्योंकि h हमारा p स्क्वायर बाई 2m था. so यहां से अगर आप p स्क्वायर निकालोगे देन p स्क्वायर इक्वल टू 2mh और p इक्वल टू रूट ऑफ 2mh. so p इक्वल टू रूट ऑफ 2mh, h हमारा एनर्जी है और h को अगर आप e लिखोगे देन p को हम r लिखेंगे. so r इक्वल टू रूट ऑफ 2me. also p equal to x and this is less than r because h is less than e. क्योंकि ये जो r है ये in terms of e है और p in terms of h है. so since h is less than e, so p will be less than r. so p is less than r because h is less than e, where omega n r is the volume of an n sphere of radius r and it is given by. so omega n r is actually the volume of n sphere of radius r. so r radius का जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम हमारा ओमेगा है और यहां पर n स्फेयर हमने लिए हैं. so this is omega n r और इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे. so omega n r equal to integration x1 square plus x2 square up to xn square is less than r square dx1 dx2 up to dxn, and this is equal to cn r raised to n. so omega n r is equal to cn r raised to n. here cn is a constant. तो यहां पर ये जो हमने cn लिया है दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन वी विल गेट cn r raised to n. नाउ इवैल्यूएशन ऑफ cn. तो अभी हमने जो रिलेशन निकाला था उसके अंदर cn आ रहा था. अब cn को हमको अलग से इवैल्यूएट करना है और उसके बाद में पहले जो फॉर्मूले आए हैं उनके अंदर पुट करना है. Now, for evaluating the Cn, we use an identity. और identity क्या है? Integration minus infinitive to plus infinitive exponential minus x1 square dx1 into integration minus infinitive to plus infinitive exponential minus x2 square dx2 into up to integration minus infinitive to plus infinitive exponential minus xn square dxn, and this is equal to integration minus infinitive to plus infinitive exponential minus x square dx whole raised to n. इसका मतलब ये हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया. ये भी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और ये भी हमारा ये है. सो हर टर्म से हमको इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव एक्स रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स मिल रहा है. फिर n टाइम्स है इसलिए पावर n आ गया है. सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स होल रेज टू n. नाउ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू रूट पाई. तो इसकी वैल्यू हमारी फिक्स है जो कि रूट पाई होती है. इसका मतलब ये रूट पाई होल रेज टू n हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू पाई रेज टू n बाई 2.
So this is equal to pi raised to n by 2. Let the surface area of a sphere of radius r be. So रेडियस r वाला जो हमारा स्फेयर है उसका सरफेस एरिया हम एस एन इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ ओमेगा एन आर ले लेते हैं, क्योंकि ओमेगा एन आर एक्चुअल में वॉल्यूम था, और वॉल्यूम का अगर आप डिफरेंशियल करोगे देन वी गेट सरफेस एरिया. सो एस एन इक्वल टू डी ओमेगा एन अपॉन डी आर, एंड यहां से हमको डी ओमेगा एन की वैल्यू एस एन डी आर मिलेगी, और अगर आपको ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है देन इसका इंटीग्रेशन करना होगा. सो ओमेगा एन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एन आर डी आर. सो अगर आप एस एन आर का विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करोगे देन वी विल गेट ओमेगा एन आर. But omega n r equal to integration x1 square plus x2 square plus xn square is less than r square dx1 dx2 dxn था. So इसकी वैल्यू हमारी ये है. So अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करें मीन्स इस ओमेगा एन आर की जगह अगर हम ये वैल्यू यहां पर रखें तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x1 स्क्वायर plus x2 square plus xn square is less than r square dx1 dx2 dxn is equal to integration sn r dr. तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी. नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है. सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx1 इंटू integration minus infinity to plus infinity dx2 into integration minus infinity to plus infinity dxn exponential minus x1 square plus x2 square plus xn square is equal to snr dr e raised to minus r square. तो हमने दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, और आर स्क्वायर हमारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर था, तो हमको ये रिलेशन मिल जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू ncn इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dr r रेज़ टू n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है. लेट r स्क्वायर इक्वल टू t. सो अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है so we consider that r square equal to t. so अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2r dr equal to dt, और आपको dr की वैल्यू निकालनी है. so dr equal to dt अपॉन 2r, बट r equal to रूट ऑफ t, क्योंकि r स्क्वायर t है. so dr equal to dt अपॉन 2 रूट t. इट मीन्स dr की जगह आप dt अपॉन 2 रूट t पुट करोगे, इस r स्क्वायर की जगह t और इस r की जगह रूट t आएगा. सो r स्क्वायर इक्वल टू t, इट मीन्स 2r dr इक्वल टू dt. एंड अगर आपको dr की वैल्यू निकालनी है सो dr इक्वल टू 1 अपॉन 2r dt. तो हमने क्या किया है, dr की वैल्यू निकालनी है तो इस 2r को नीचे ट्रांसफर कर दिया. नाउ r स्क्वायर इक्वल टू t, इट मीन्स r इक्वल टू रूट ऑफ t. सो dr क्या हो जाएगा, dr इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट t dt. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dr. नाउ यहां पर हम dr की वैल्यू, r की वैल्यू एंड r स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे. लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि r स्क्वायर इक्वल टू t है. सो जो लिमिट r की थी वही हमारी t की लिमिट हो जाएगी, क्योंकि अगर इंफिनिटिव का हम रूट निकालें या इंफिनिटिव का स्क्वायर करें वैल्यू हमारी इंफिनिटिव ही रहती है. सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव dr इंटू r रेज़ टू n माइनस 1 e रेज़ टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू dr हमारा हो गया 1 अपॉन 2 रूट t. रूट t को t रेज़ टू माइनस हाफ लिख दिया है dt. लिमिट हमारी वही है. अब r की वैल्यू क्या होगी, r इज एक्चुअली रूट t मीन्स t रेज़ टू पावर हाफ. So t raised to half
एंड होल पावर n माइनस वन था, तो इसको हमने पावर n माइनस वन लिख दिया, और इस आर स्क्वायर की जगह आप t पुट करोगे, सो एक्सपोनेंशियल माइनस टी, सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dr into r raised to n minus 1 e raised to minus r square is equal to 1 upon 2 integration 0 to infinity t raised to minus half dt into t raised to half whole power n minus 1 e raised to t. now और अब अगर हम इसको और इसको कंबाइन कर दें तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, t raised to n by 2 माइनस हाफ, और यहां से हमारे पास में क्या है, टी रेज टू पावर माइनस हाफ। इसका मतलब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टी रेज टू एन बाई टू माइनस हाफ मीन्स वन, सो टी रेज टू एन बाई टू माइनस वन, और ये हमने यहां पर लिखा है टी रेज टू एन बाई टू माइनस वन। सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी आर आर रेज टू एन माइनस वन ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 upon 2 integration 0 to infinity t raised to n by 2 minus 1 e raised to minus t dt, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। नाउ इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x raised to n minus 1 e raised to minus x dx इक्वल टू गामा n। इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे गामा में चली जाएगी, सो यहां पर n की जगह n by 2 है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा n by 2। सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी आर इंटू आर रेस टू n माइनस वन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ गामा n by 2। सो हाफ ये बाहर था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और इसकी वैल्यू हमको गामा n by 2 मिल गई, इट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ गामा n by 2। नाउ ये रिलेशन हमने निकाला हुआ था और इसकी वैल्यू हमने अलग से निकाली है, ये क्या आया है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी आर इंटू आर रेस टू एन माइनस वन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ गामा एन बाई टू। तो आप इसकी जगह हाफ गामा एन बाई टू पुट कर दो, एंड साथ में हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या थी, पाई रेस टू एन बाई टू। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहां पर आ जाएगा पाई रेस टू एन बाई टू, और यहां पर आ जाएगा हाफ गामा एन बाई टू। सो यहां से और यहां से वैल्यू अगर हम यहां पर रखेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, पाई रेस टू एन बाई टू एन सी एन इंटू हाफ गामा एन बाई टू, और हमको सी एन की वैल्यू निकालनी है। सो सी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एन एक्चुअल में इसके साथ आ गया, सो एन बाई टू, सो सी एन इज इक्वल टू पाई रेस टू एन बाई टू डिवाइडेड बाय एन बाई टू गामा एन बाई टू, तो हमारा सी एन आ जाएगा। सो एन सी एन हमारा हो गया पाई रेस टू एन बाई टू हाफ गामा एन बाई टू, और ये एन हमारा नीचे आ जाएगा, सो सी एन इक्वल टू पाई रेस टू एन बाई टू डिवाइडेड बाय एन बाई टू गामा एन बाई टू। सो सी एन की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब ये फॉर्मूला क्या है, सिंस x गामा x इक्वल टू गामा x प्लस वन, तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, गामा n बाई टू प्लस वन, क्योंकि अगर x गामा x होता है तो वैल्यू गामा x प्लस वन है, और यहां पर x की जगह n बाई टू है, so n बाई टू गामा n बाई टू विल बी गामा n बाई टू प्लस वन। So Cn equal to pi raised to n by 2 divided by gamma n by 2 plus 1. So this will be the value of Cn, but gamma x plus 1 is actually factorial x. इसका मतलब gamma n by 2 plus 1 क्या जाएगा, factorial n by 2, तो इसको हम factorial n by 2 लिख देते हैं। So Cn equal to pi raised to n by 2 divided by factorial n by 2.
तो हमको Cn की वैल्यू निकालनी थी और Cn हमारा आ गया पाई रेज टू n बाई 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n बाई 2। ना ये वैल्यू हमारी आ गई है। सो अगर हम इस Cn का लॉग निकालें, सो log Cn इक्वल टू log ऑफ पाई रेज टू n बाई 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n बाई 2। अब log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n। इट मीन्स दिस विल बी log पाई रेज टू n बाई 2 माइनस log ऑफ फैक्टोरियल n बाई 2। नाउ log m रेज टू n का फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। सो पावर हमारे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। सो n बाई 2 log ऑफ पाई माइनस log ऑफ फैक्टोरियल n बाई 2, और ये हमने यहां पर लिखा है log Cn इक्वल टू n बाई 2 log पाई माइनस log फैक्टोरियल n बाई 2। नाउ फ्रॉम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, सो अगर आप स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाओगे देन log ऑफ फैक्टोरियल n होता है n log n minus n। So this is from Stirling approximation. So from Stirling approximation, log of factorial n equal to n log n minus n, और यहां पर log of factorial n by 2 है, तो ये क्या हो जाएगा n by 2 log n by 2 minus n by 2। So log Cn equal to n by 2 log pi, ये एज इट इज, और इसको आपने क्या लिख दिया n by 2 log n by 2 माइनस n by 2, और ये नेगेटिव साइन यहां पर एज इट इज आ गया। सो log Cn इक्वल टू n by 2 log pi माइनस ऑफ n by 2 log n by 2 माइनस n by 2। नाउ इस नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो log Cn की वैल्यू हमको मिलेगी n by 2 log pi minus n by 2 log n by 2 plus n by 2। So this will be the value of log Cn। Now अगर हमको log C3n की वैल्यू निकालनी है तो जहां जहां हमको n दिख रहा है उन सभी जगह पर हम 3n पुट कर देंगे। So log C3n is equal to 3n by 2 log pi minus 3n by 2 log 3n by 2 plus 3n by 2। So log C3n हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सो इस मल्टीप्लिकेशन को अगर हम पावर में ले जाएं, क्योंकि n log m इक्वल टू log m रेज टू n होता है, तो ये जाएगा log पाई रेज टू 3n by 2। अब यहां पर भी इस 3n by 2 को इसके पावर में ले जाते हैं, सो माइनस log 3n by 2 पावर 3n by 2, और ये 3n by 2 एज इट इज। सो log C3n हो जाएगा log पाई रेज टू 3n by 2 माइनस log 3n by 2 रेज टू पावर 3n by 2 प्लस 3n by 2। नाउ यहां पर और यहां पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n, और दिस विल बी इक्वल टू log पाई अपॉन 3n by 2 होल पावर 3n by 2, तो हमको ये मिल जाएगा। सो log पाई अपॉन 3n by 2 पावर 3n by 2 प्लस 3 by 2n, और ये 2 आप यहां पर ले जाओ, सो log C3n क्या हो जाएगा log ऑफ 2 पाई अपॉन 3n रेज टू 3n by 2 प्लस 3 by 2n। सो log C3n हमारा ये हो गया है। नाउ ये वैल्यू हमने निकाली थी, एंड ओमेगा एन आर हमारा CnR रेज टू n था, और यहां पर आपको ओमेगा 3n की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर हो जाएगा 3n, इधर हो जाएगा 3n, और यहां पर भी आ जाएगा 3n। सो इंटीग्रेशन h इज लेस देन e d3p1
D3P2, D3Pn, D3Q1, D3Q2, D3Qn is equal to V raised to n, ये V raised to n as it is, and ओमेगा 3nr का हो गया C3n r raised to 3n. So V raised to n C3n r raised to 3n and r equal to root 2me था. So यहां पर हम r की वैल्यू रख देते हैं. So this will be equal to V raised to n C3n 2me पावर 3n by 2, क्योंकि r हमारा रूट ऑफ 2me है तो मैंने इसको 2me पावर हाफ लिख दिया है. So इसकी वैल्यू हमको मिल गई V raised to n C3n 2me होल पावर 3n by 2 एंड सिग्मा e की वैल्यू हमारे पास में ये थी और इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी है. सो अगर हम इसकी जगह ये वैल्यू यहां पर रखें सो सिग्मा e की वैल्यू हमको मिलेगी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन h रेज टू 3n v रेज टू n c3n 2me पावर 3n by 2. So this will be the value of sigma e, और this will be equal to c3n, ये 2me पावर 3n by 2 है और ये हमारा v रेज टू n और h रेज टू 3n है. तो यहां से n, यहां से n और यहां से n, इन सबको मैं एक साथ में ले लेता हूं तो होल पावर n हमको मिल जाएगा और होल पावर n किसकी होगी v अपॉन h क्यूब 2me पावर 3 by 2. So sigma e equal to c3n v upon h cube 2me पावर 3 by 2 होल पावर n. So sigma e हमारा e हो गया. तो हमने क्या किया है v रेज टू n अपॉन h रेज टू 3n इंटू 2me पावर 3n by 2 को v by h क्यूब 2me पावर 3 by 2 होल रेज टू n लिख दिया है. सो सिग्मा e की वैल्यू अब हमको ये मिल गई है. नाउ एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस. अब एंट्रोपी हमको पता है S इक्वल टू k log सिग्मा e होता है. सो आइडियल गैस की एंट्रोपी S which is a function of energy and volume is equal to k log sigma e and here k is Boltzmann's constant और सिग्मा e अभी हमने निकाला है सिग्मा e इक्वल टू c3n v अपॉन h क्यूब 2me पावर 3 by 2 होल रेज टू n. तो आप क्या करोगे इस सिग्मा e की जगह ये वैल्यू आप यहां पर रख दो. सो s की वैल्यू हमको मिल जाएगी. सो s इक्वल टू k log c3n v by h क्यूब 2me होल पावर 3 by 2 होल रेज टू n. तो हमने क्या किया है यहां पर सिग्मा e की वैल्यू ये रख दी है तो s की वैल्यू हमको ये मिल गई. नाउ यहां पर हम log m इंटू n का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या आ जाएगा log m प्लस log n. सो दिस विल बी इक्वल टू k, ये क्या आ जाएगा log c3n. तो log c3n प्लस log ऑफ v by h क्यूब 2me पावर 3 by 2 होल रेज टू n. इस n को इसके और इसके साथ में ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ v by h क्यूब पावर n इंटू 2me पावर 3n by 2. अब क्या करोगे ये log m इंटू n है तो log m प्लस n हो जाएगा. तो ये क्या जाएगा log v by h क्यूब होल पावर n प्लस log 2me होल पावर 3n by 2 और ये हमने यहां पर लिख दिया है. तो log v by h क्यूब पावर n प्लस log 2me पावर 3n by 2. तो यहां पर हमने log m इंटू n का फॉर्मूला लगाया तो वो हमारा log m प्लस log n होगा. सो log c3n प्लस log v by h क्यूब 2me पावर 3 by 2 होल पावर n और इसमें वापस हमने log m इंटू n का फॉर्मूला लगाया तो हमको log
v by h क्यूब होल पावर n प्लस log 2me होल पावर 3n by 2 मिल गया है। तो पहले यहां पर हमने इस n को इसके साथ में लिया, फिर log m इंटू n का फॉर्मूला लगा दिया जिससे ये मिल गया। इसका मतलब s की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, बट log c3n इक्वल टू log 2 पाई अपॉन 3n होल पावर 3n बाई 2 प्लस 3 बाई 2n था। तो आप क्या करोगे, इस log c3n की जगह ये वैल्यू यहां पर रख दो, सो s की वैल्यू हमको मिलेगी, सो s इक्वल टू k log 2 पाई अपॉन 3n होल पावर 3n बाई 2 प्लस 3 बाई 2n और ये वैल्यू एज इट इज, सो प्लस log v अपॉन h क्यूब होल पावर n प्लस log 2me होल पावर 3n बाई 2। सो s हमारा ये हो गया। तो सिंपली हमने यहां पर log c3n की वैल्यू यहां से यहां पर रख दी है, जिससे s की वैल्यू हमको ये मिल गई। नाउ इस 3n बाई 2 को अलग ले लो और बची हुई जो वैल्यू है log 2 पाई अपॉन 3n होल पावर 3n बाई 2 प्लस log v अपॉन h क्यूब होल पावर n प्लस log 2me होल पावर 3n बाई 2। तो यहां पर log m प्लस log n प्लस log p, log m इंटू n इंटू p होता है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू log के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। सो log v रेज टू n, सो v रेज टू n इंटू, अब यहां पर ये क्या है, h रेज टू 3n, तो h रेज टू 3n अपॉन में है, और यहां पर क्या है 2 पाई अपॉन 3n होल पावर 3n बाई 2 और यहां पर 2me होल पावर 3n बाई 2। तो मैं होल पावर 3n बाई 2 ले लेता हूं। तो अगर मैं होल पावर 3n बाई 2 लूंगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर होल पावर 3n बाई 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर ये वापस h की पावर 3n मिलेगा। इसका मतलब इसको और इसको मैं इन्वॉल्व करूं तो वो क्या हो जाएगा, log v रेज टू n 2 पाई अपॉन 3n इंटू 2me इंटू 1 अपॉन h स्क्वायर होल पावर 3n बाई 2। सो log v रेज टू n, so v रेज टू n 2 पाई अपॉन 3n, so 2 पाई अपॉन 3n 2me, so 2me, और यहां पर हमारे पास में h रेज टू 3n है, पर हमको h रेज टू 3n बाई 2 चाहिए, इसलिए यहां पर हमने h स्क्वायर लिख दिया है। सो s अब हमारा ये हो जाएगा, सो s की वैल्यू अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सो s हमने ये निकाल दिया और s इक्वल टू n के, तो आप क्या करोगे, तो ये क्या है 3n बाई 2 और यहां पर हमारे पास में n, तो यहां से और यहां से n में बाहर लो, सो ये क्या हो जाएगा v 2 पाई अपॉन 3n इंटू 2me इंटू 1 बाई h स्क्वायर 3 बाई 2 और इस पूरे का पावर n आ जाएगा। इस n को हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं क्योंकि आगे log है, सो n हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n log v 2 पाई अपॉन 3n इंटू 2me 1 अपॉन h स्क्वायर पावर 3 बाई 2। सो दिस विल बी इक्वल टू n k, सो n हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू n के log v और यहां पर 2 इंटू 2, सो 4m पाई, सो 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर e अपॉन n, सो इंटू e बाई n होल पावर 3 बाई 2 और ये हमारा 3 बाई 2 n और यहां पर k है, सो प्लस 3 बाई 2 n k। सो s की वैल्यू अब हमको ये मिल गई। नाउ सॉल्विंग एबो इक्वेशन फॉर e, सी हमारा s इन टर्म्स ऑफ e एंड v है, हम यहां से e की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम।
अगर हम इस इक्वेशन को E के लिए सॉल्व करें, सो इस इक्वेशन को E के लिए सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस 3/2 nk को लेफ्ट में लेना है और इसके बाद में nk से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस 3/2 nk अपॉन nk, और यहां पर क्या रह गया, log ऑफ v 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर इंटू e बाई n पावर 3/2। अब यहां पर पावर 3/2 केवल इस पर है, हम चाहते हैं कि 3/2 होल पावर बन जाए, तो इसको मैं 2/3 लिख देता हूं और ये 3/2 हमारा बाहर आ जाएगा पावर में। इसका मतलब ये क्या हो गया, log ऑफ v रेज़ टू 2/3 इंटू 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर इंटू e बाई n होल पावर 3/2। और ये 3/2 अब हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो वैल्यू हमको मिलेगी 3/2 log v रेज़ टू 2/3 इंटू 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर इंटू e बाई n। तो आप अगर इस इक्वेशन को e के लिए सॉल्व करोगे तो हमको पहले ये मिलेगा। अब यहां से हमको e को फ्री करना है, तो e को फ्री करने के लिए पहले आप इस 3/2 को नीचे ले जाओ, तो यहां पर आ जाएगा 3/2। Now this will be equal to s minus 3/2 nk divided by 3/2 nk equal to log v raised to 2/3 into 4m pi upon 3h square into e by n। अब क्या करते हैं, इस 3/2 nk से इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 3/2 nk को 3/2 nk से डिवाइड करोगे तो यहां पर तो आ जाएगा 1, और यहां पर क्या आएगा, s डिवाइडेड बाय 3/2 nk, और ये 3/2 को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 2/3 s अपॉन nk। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 s अपॉन nk माइनस 1। सो 2/3 s अपॉन nk माइनस 1 log v रेज़ टू 2/3 इंटू 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर इंटू e बाई n। तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब e की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में लॉग नेचुरल बेस पर है, इसका मतलब लॉग बेस e है, तो ये बेसिकली नेचुरल लॉग है जिसको हम ln लिखते हैं। सो अगर आपको इस ln को हटाना है, इसका मतलब दोनों साइड में हमको एक्सपोनेंशियल लेना होगा। सो 2/3 s अपॉन n के माइनस 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग v रेज़ टू 2/3 इंटू 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर इंटू e बाई n है। अब इस नेचुरल लॉग को हटाओ तो यहां पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, और यहां पर ये लॉग हट जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू v रेज़ टू 2/3 इंटू 4m पाई अपॉन 3h स्क्वायर इंटू e बाई n एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के माइनस 1। तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब इस e को निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को उल्टा करके आप यहां पर ले आओ। So E equal to 3h square upon 4m pi into n upon v raised to 2/3। तो E को निकालना है, तो ये पूरी वैल्यू यहां पर उल्टी होकर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 4m पाई n अपॉन v raised to 2/3, और ये हमारा एज इट इज, सो एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के माइनस 1। सो एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम हमको ये मिलेगा। नाउ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ये आ गया, और ये एक्चुअल में हमारा इंटरनल एनर्जी है। सो U इन टर्म्स ऑफ S एंड V इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 4m पाई n अपॉन v रेज़ टू 2/3 एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के माइनस 1। ये हमारे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। नाउ टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी आपके पास में है, इससे आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है। सो टेम्परेचर कैसे निकलेगा, टेम्परेचर इक्वल टू डेल U बाई डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
सो अगर आप इस इंटरनल एनर्जी का एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफरेंशियल करोगे देन वी गेट टेम्परेचर। अब आपको डिफरेंशियल करना है। सो ये वैल्यू हमारे लिए कांस्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी डिफरेंशियल कर रहे हो तो पहले एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा। तो पहले तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, फिर आप इसका करोगे तो 1 का 0 और ये क्या जाएगा 2/3 n k। इट मीन्स हमको क्या मिलेगा u इंटू 2/3 n k। सो t इक्वल टू u इंटू 2/3 1/n k। सो t की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और t इक्वल टू 2/3 u/n k। सो दिस विल बी आवर टेम्परेचर। अब अगर आपको इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना है तो यहां से इंटरनल एनर्जी क्या आएगी u इक्वल टू 3/2 n k t। सो दिस विल बी द इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो u इक्वल टू 3/2 n k t। सो टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी ये आ गया एंड इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमको ये मिल गया है। नाउ यू हमने ये निकाल दिया। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अगर आपको CV निकालना है, U आपको पता है, तो आप U का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV इक्वल टू del U by del T at V। सो अगर आप इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या जाएगा 3/2 n k। सो हीट कैपेसिटी विल बी 3/2 n k। So CV equal to 3/2 Nk। Now pressure। प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वी एट S एंड U हमारा ये है। हमको क्या करना है इस U का V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो यहां पर 3h² अपॉन 4m पाई n इंटू एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के -1 हमारा कांस्टेंट है। अब आपको 1/v/2/3 का डिफरेंशियल करना है। ये क्या हो गया v/-2/3। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा -2/3 v/-2/3 -1 और ये क्या हो जाएगा v/-5/3 और v/-5/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/v/5/3 और ये क्या हो जाएगा 1/v/2/3 इंटू v। सो v/2/3 इंटू v एक्चुअल में हमारा v/5/3 होता है। तो आप चाहो तो यहीं पे चेंज कर दो, तो इसको हम क्या लिख देते हैं v/-2/3 इंटू v/-1 तो ये जाएगा 1/v/2/3 इंटू 1/v और ये जो 1/v/2/3 है इसको आप इसके साथ में रख दो। तो यहां पर सिंपली हमारे पास में क्या बचेगा -2/3 इंटू 1/v। सो इस फॉर्मूले में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहां है तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2/3 इंटू 3h² अपॉन 4m पाई n अपॉन v/2/3 एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के -1 इंटू 1/v और ये पूरा हमारा u होता है। सो दिस विल बी 2/3 u अपॉन v। सो आप ये नेगेटिव यहां पर लगा दोगे और इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो 3h² अपॉन 4m पाई ये कांस्टेंट, ये n कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट और 1/v/2/3 का हो गया -2/3 v/-2/3 -1 और अब ये क्या हो जाएगा 1/v इंटू 1/v/2/3 और इस नेगेटिव को इसके साथ में मैं ले जाता हूं। सो
ये क्या हो जाएगा 3h² 4m पाई n अपॉन v रेज टू 2/3 एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के -1 जो कि u हो जाएगा इंटू 1 अपॉन v एज इट इज बचा हुआ है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 से 2/3 यहां पर लिख दिया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, और ये जो हमारा v रेज टू -2/3 -1 था, इसको मैंने कहा था 1/v इंटू 1 अपॉन v रेज टू 2/3 लिखेंगे। सी 1 अपॉन v यहां पर आ गया, बची हुई जो भी वैल्यू है 3h² अपॉन 4m पाई ये यहां पर n अपॉन v रेज टू 2/3, सो n अपॉन v रेज टू 2/3 एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के -1, सो एक्सपोनेंशियल 2/3 s अपॉन n के -1, और ये जो वैल्यू है एक्चुअल में हमारी u है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2/3 u अपॉन v, क्योंकि इसको हमने u पुट कर दिया, सो p इक्वल टू 2/3 u अपॉन v, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, बट u इक्वल टू 3/2 nkt, तो u हमारा 3/2 nkt है, तो जैसे यहां पर 3/2 nkt रखोगे p हमारा ये हो जाएगा, सो p इक्वल टू 2/3 इंटू 3/2 nkt अपॉन v। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो p इक्वल टू nkt अपॉन v, तो p इक्वल टू nkt अपॉन v, और आप यहां से चाहो तो आइडियल गैस का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि p इक्वल टू nkt अपॉन v आया है, इट मीन्स pv इक्वल टू nkt, हियर n इज एवोगैड्रो नंबर, k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंड n इंटू k हमारा नया कांस्टेंट होता है जिसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, सो पी वी इक्वल टू आर टी। सो यहां पर हमको गैस का फॉर्मूला, ये आइडियल गैस फॉर्मूला मिल जाता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन मिलती है, सो पी वी इक्वल टू आर टी। So here we end our session. In the current lecture, we have discussed about classical ideal gas. So goodbye.